हेलो एवरीवन, दिस इज यथार्थ नगाइच। और आज से हम अपनी प्लेलिस्ट चालू करने वाले हैं। तो आज हम पहला चैप्टर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन दी गई हुई है 2x² प्लस कॉस थीटा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, and we have to find the minimum and the maximum value of alpha naught whole power 4 plus beta naught powered 4. We have to find the minimum and the maximum value of this expression. So alpha naught whole power 4 and beta naught whole power 4 can be written as alpha naught whole square plus beta naught square whole squared minus 2 alpha naught square beta naught square. Now and then again alpha naught square plus beta naught square can be written as alpha naught plus beta naught whole squared minus 2 alpha beta naught. Now we know that alpha naught plus beta naught is equals to minus cos theta by 2, and alpha naught beta naught is equals to minus 1 by 2. तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, cos theta minus 2 whole squared minus 2 into minus 1 by 2. Then this is equals to cos square theta by 4 plus 1. This is alpha naught square plus beta naught square. Then we will substitute the value of alpha naught square plus beta naught square into this equation. So this equation will be equals to alpha naught 4 plus beta naught 4 is equals to cos square theta by 4 plus 1 whole squared minus, and alpha naught square beta naught square can be written as minus 1 by 2 whole squared, which equals to 1 by 4 into minus 2 into 1 by 4. So alpha naught is 4 plus beta naught whole power 4 is equals to cos 4 theta by 16 plus 1 plus 2 into cos square theta by 4 minus 1 by 2. Now this can be written as cos 4 theta by 16 plus 1 plus 1 plus cos square theta by 2 minus plus 1 by 2. If we take both these, then we would get plus 1 by 2. Now this is the expression alpha naught 4 plus beta naught 4. Now we know that cos square theta range is 0 to 1, and also cos 4 theta range is also 0 to 1. So for the maximum value of this expression, cos whole power 4 theta is equals to 1 by 16 plus 1 by 2 plus 1 by 2, there which is equals to 17 by 16. Now for the minimum value, cos theta will be equals to 0, and this is the maximum value of this expression, and the minimum value when cos theta is equals to 0, so this thing will be 0, and this is always 0. So the minimum value should be 1 by 2. Now we have to find 16 into maximum plus minimum value. So we would do 16 into 17 by 16 plus 2 plus 1 by 2. So 16 into 17 plus 8 by 16, which is equals to 25. So 25 is our answer. Now on to the next question. We have, let the equation x into x plus 2 12 minus k is equals to 2 have equal roots. So now let us make this expression x square plus 2x into 12 minus k is equals to 2. So 12 minus k x square plus 2 12 minus k x is equals to 2, or minus 2 is equals to 0. Now for this to have equal roots, it's d is equals to 0, where d is equals to b square minus 4ac is equals to 0. So 2 into 12 minus का whole square minus 4 into minus 2 into
12 minus k is equals to 0. So now let us make this expression 4 into 144. No. Let us take common 4 into 12 minus k. Then this should leave 12 minus k minus plus 2. As we have taken 4 common, 12 minus k common, so that would leave minus 2 into minus 1. So there we would get 12 minus k plus 2 is equal to 0. So from here we would get k is equals to 12 and k is equals to 14. Now we have to find the distance from point k by 2. So now we have two values of k. तो हम एक k को 12 रखेंगे तो हमारे पास पॉइंट आएगा 12,6 और अगर हम k को 14 रखेंगे तो हमारे पास पॉइंट आएगा 14,7. So now we know that the distance of a point from a given equation is equals to 3x1 plus 4y1 plus 5 upon root 3 square plus 5 square. Now we will put the point, so the distance from the point 12,6 from the line 3x plus 4y plus 5 is equals to 3 into 12 plus 4 into 6 plus 5 upon 5. As we know that 3 square is equals to 9 and 4 is equal to 16 and 16 plus 9 is equal to 24. So 25 का रूट होता है 5. Now तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 12 3 36 plus 24 plus 5 upon 5. This is our d. D is equals to 3 to 5 60 65. Then d is equals to 13. Now do we have 13 as an answer? तो 13 आंसर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग के सॉल्व करके देखेंगे अब. So d is equals to 3 into 14 plus 4 into 7 plus 5 upon 5. तो उसको सॉल्व करेंगे तो 42 plus 28 plus 5 upon 5. तो इसमें हमारे पास आएगा 75 upon 5 which is equals to 15. सो हमारा आंसर हो जाएगा 15. ना हमारे अगले क्वेश्चन पे हमारे पास दिया गया है 8 2x minus 16 8 की पावर x प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0. तो अब हम लोग 8 की पावर x को t मान लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 48. नाउ 48 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 4, तो जिससे इस इक्वेशन के रूट हो जाएंगे t माइनस 12 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 12 और 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 4. तो दोनों साइड लॉग लेने पर सबसे पहले हम 8 का लॉग ले लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू लॉग 12 इंटू 8, 12 टू द बेस 8. तो यहाँ पे लॉग लेने पे हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू लॉग 4 टू द बेस 8. नाउ हमें फाइंड करना है द सम ऑफ द ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. So we have to find x1 plus x2 which is equals to log 8 12 plus log 4 to the base 8. Now we know this property that if it is given that log a to the base b plus log c to the base b, then it is equals to log ac to the base b. Now it is the common property of logarithm, so we would get log 48 to the base 8. Now as we know that 48 can be also written as 8 into 6, so log 8 into 6 to the base 8. Now this can be written as log 8 base 8 plus log 6 base 8. तो ये जो अपन ने लिखा है ये इसी प्रॉपर्टी से कर सकते हैं अपन लोग.
तो इसका आंसर जो आएगा 1 प्लस लॉग 6 टू द बेस 8। तो ये अपना आंसर है। तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो हमें दिया गया है कि दिस इक्वेशन के पास इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए। तो इंटीग्रल रूट्स के लिए जो डी है हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर इसलिए होना चाहिए क्योंकि रूट्स हमारे होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। यहाँ पे इरेशनल इरेशनल प्रोडक्ट हमारा सिर्फ रूट डी होता है। तो अगर ये इंटीग्रल स्क्वायर, ये अगर स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये रूट रैशनल हो जाएंगे। लेकिन अपन को इंटीग्रल भी चाहिए, तो अपन डी से नहीं कर पाएंगे अकेला। तो हमें x इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट -4 प्लस माइनस रूट 16 प्लस 4n अपॉन 2। तो इसको लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2 4 प्लस n अपॉन 2। यहाँ पे अपन ने 4 कॉमन लिया हुआ है, तो 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो -2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस n। ना अपन को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, या इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अपन को। तो रूट 4 प्लस एन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? हमारे पास एन दिया गया है कि 20 से 100 है। तो पहली वैल्यू एन इज इक्वल टू 21। दूसरा स्क्वायर आता है 25 36। तो 36 माइनस 4 32। अगला स्क्वायर आता है 49। तो 49 माइनस 4 45। अगला स्क्वायर आता है अपने पास 7 7 14 8 8 64। तो अगला नंबर आएगा अपना 60। नाउ 9 9 81। वी वुड गेट 77। नाउ अगला नंबर आता है 100। तो वी वुड गेट 96। तो हमारे पास एन की 6 वैल्यूज आ रही हैं। तो एन की 6 वैल्यूज के लिए दिस इक्वेशन शुड हैव इंटीग्रल रूट्स। सो द आंसर इज 6। तो हमें दिया गया है कि तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और हमें वैल्यूज फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा 4 कॉमा 1/10 इंटू अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं 1/10 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये यहाँ से कर सकते हैं अपन लोग कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसको लिखते हैं अपन लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। तो अगर हम इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है कि -2√2 है और अल्फा बीटा -1 है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो 2√2 -2√2 होल स्क्वायर -2 इंटू -1। तो ये 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग 10 होल स्क्वायर -2 इंटू 1 एज अल्फा बीटा इक्वल टू -1। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 98 आ जाएगा यहाँ से। और ये 1/10 इंटू 1000 माइनस 3 इंटू 1 इंटू अल्फा स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर इंटू 10
तो 1/10 इंटू 970 विच इज इक्वल्स टू 97। तो हमें दोनों रूट पता पड़ गए अपने। तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे 98 प्लस 97 इंटू एक्स, दैट इज द सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। As 98 plus 97 is equals to 195 x square plus 100 minus 2 into 97, we would get 9700 minus 200 minus 6, which is equals to 194. So we would get 9700 9506. So our required equation should be x square minus 195x plus 9506 is equals to 0. So that is our correct answer. Now on to our next question. We have equation x square plus root 3x minus 16 is equals to 0 and x square plus 3x minus 1 is equals to 0. तो इसके लिए हमें रिकरेंस रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो रिकरेंस रिलेशन होता है ए टी एन माइनस बी टी एन माइनस वन माइनस सी टी एन माइनस टू, वेयर टी एन इज इक्वल्स टू अल्फा पावर्ड एन प्लस बीटा पावर्ड एन। ये ऐसे लिखा जा सकता है जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस 16, एक्स की पावर 2 रूट थ्री की पावर एक्स 2 माइनस 1 माइनस 16 एक्स की पावर 0। तो इससे हम ये कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं, टी एन को हम पी एन से रिप्लेस कर देंगे तो पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा पी एन इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री टी एन माइनस वन प्लस 16 टी एन माइनस टू। सेम इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्यू एन है गामा की पावर एन प्लस डेल्टा की पावर एन। तो हम इसे लिख सकते हैं कि इसका रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा क्यू एन इज इक्वल्स टू माइनस थ्री क्यू एन माइनस वन प्लस वन क्यू एन माइनस टू। अब हमें निकालना क्या है, पी 25 प्लस रूट थ्री पी 24 अपॉन 2 पी 23 प्लस क्यू 25 माइनस क्यू 23 अपॉन क्यू 24। तो यहाँ पे अपन p की वैल्यू p25 रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट थ्री p24 प्लस 16 p23। और यहाँ पे अपन की q25 रखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस थ्री q24 प्लस q23। अब वैल्यू पुट कर देंगे अपन लोग यहाँ पे तो ये हो जाएगा p25 को अपन माइनस थ्री p24 प्लस 16 p23 अपॉन p23 प्लस रूट थ्री p24 प्लस q25 को लिख देंगे कि माइनस थ्री q24 माइनस प्लस q23 माइनस q23 अपॉन q24। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16p23 अपॉन 2p23 minus 3q24 upon q24 is equals to 8 minus 3 is equals to 5. So our answer is 5. So for our next question we have x square minus p plus 2 into x plus 2p plus 9 is equals to 0. Now we have to make sure that the roots of both this equation are negative. So the graph should be like this. So the vertex minus b by 2a should be this. So this is a question of location of root. तो हमारे पास तीन कंडीशंस आएंगी
first d greater than equals to 0, second minus b by 2a is less than 0, और थर्ड इक्वेशन आएगी a f of 0 is greater than 0. So now solving a first equation, d greater than equals to 0, we have p plus 2 whole squared minus 4 2p plus 9 greater than equals to 0. So p square plus 4 plus 4p minus 8p plus minus 36 greater than equals to 0. So p square plus 4 minus 4p minus 36 greater than equals to 0. P minus 2 whole square minus 6 whole square greater than 0. Now we will apply the formula a square minus b square. So p minus 2 minus 6, p minus 2 plus 6 greater than equals to 0. तो हमारे पास आ जाएगा p minus 8 p plus 4 greater than equals to 0. So by solving this inequality we would get 8 minus 4 positive negative positive. So p should belong to minus infinity to minus 4 union 8 to infinity. Now solving our second condition, minus b by 2a less than 0. So b here is minus p plus 2 and a is 1. So p plus 2 by 2 should be less than 0. So p is less than minus 2. So p belongs to minus infinity to minus 2. और अपनी आखिरी कंडीशन है थर्ड, a f0 is greater than 0. Now a is 1 and f of 0 is equals to 2p plus 9. Now तो 2p plus 9 is greater than 0, so p is minus by 9 by 2, so p belongs to minus 9 by 2 to infinity. अब हमारे पास तीन कंडीशंस हैं, this this and this. तो इसका जो आंसर होगा वो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा. तो सबसे पहले हम सारे रूट्स मार्क डाउन कर लेते हैं. सबसे पहले 8, फिर -2, फिर -4, फिर -9/2. सबसे पहली कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन. तो कॉमन पार्ट हमारे पास ये है, तो हमारा आंसर होना चाहिए -9/2 से -4. हमारे आंसर का फॉर्मेट है अल्फा कॉमा बीटा. तो अल्फा -9/2 हो जाएगा और बीटा -4 हो जाएगा. हमें वैल्यू निकालनी है बीटा -2 अल्फा की. तो बीटा -2 अल्फा शुड बी इक्वल्स टू -4 -2 इंटू -9/2 इज इक्वल्स टू 5. तो हमारा आंसर है 5. अब हमारे अगले क्वेश्चन पे हमें दिया गया है पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, और हमें P10 की वैल्यू दी गई हुई है 123, P9 की वैल्यू है 76, P8 की वैल्यू है 47 और P1 की वैल्यू है 1. तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा. तो अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इससे हम लोग अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर 10 निकालने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आएगा अल्फा की पावर 10 प्लस अल्फा बीटा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 10 प्लस बीटा इंटू अल्फा की पावर 9. तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा और अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 प्लस अल्फा बीटा अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8. दिस इज और ये इसके इक्वल है अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 इंटू अल्फा प्लस बीटा. अब अल्फा की पावर 9 और बीटा की 9 76 इंटू 1 एंड अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 इज 123 प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा की पावर 47. Now transferring this side we would get -47 alpha beta 47. So alpha beta should be equals to -1.
So we have alpha beta plus 1 and alpha beta minus 1. So for our equation x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0, the equation should be x square minus 1x minus 1 is equal to 0. So x square minus x minus 1 is equal to 0. This is our correct answer. So now for our next question we have, this is the question of modulus function. So these type of questions are generally solved by removing the modulus function. तो सबसे पहले हमें मॉडुलस फंक्शन हटाना होता है. तो हमें दिया गया है x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस टू इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0. मैंने यहाँ पे मॉड इसलिए हटा दिया क्योंकि x माइनस टू का मॉड का होल स्क्वायर ये इंश्योर करता है कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन इसका अगर होल स्क्वायर कर दोगे तो ये ऑलरेडी इंश्योर्ड है कि ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मैंने इसका मॉड हटा दिया. तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे जाते हैं कि सबसे पहले इनका जो रूट है मॉड का उसको लिखते हैं अपन लोग एक इनइक्वालिटी लाइन पे, और फिर इसके आगे वाला इंटरवल और इसके पीछे वाला इंटरवल, इस वजह से हम लोग सॉल्व करते हैं. x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, एक ये इंटरवल हो जाएगा और एक दूसरा इंटरवल हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी. सबसे पहले इस वाले फंक्शन में ये मॉड माइनस की तरह खुलेगा, तो x माइनस टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो x इज 4 और 1. अब लेकिन इन ये x इक्वल टू 4 और 1, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 के इंटरवल में नहीं है, तो यहाँ से अपन को एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा. अब इस वाले फंक्शन पे आएंगे अपन लोग, तो x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, क्योंकि x टू टू इन्फिनिटी है, ये वाला मॉडुलस पॉजिटिव से खोलेगा, माइनस 2 इक्वल टू 0. वी वुड गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 3 एंड 0. तो यहाँ से अपन को एक रूट मिलेगा x इज इक्वल टू 3, जो कि टू टू इन्फिनिटी की रेंज में बिलोंग करता है. तो एक रियल रूट हमारे पास x इक्वल टू 3 आ गया. अब सेम हम यहाँ पे करेंगे 3 प्लस माइनस, पहला इंटरवल लेंगे अपन लोग माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 सॉरी, इसमें मॉडुलस नेगेटिव से खुल जाएगा, और x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, इसमें मॉडुलस पॉजिटिव से खुलेगा. एक्स स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव माइनस 5 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0. अभी ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे अपन, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू 1. अब ये इस वाले इंटर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये इसका अपन को रूट नहीं मिलेगा. अब सबसे यहाँ पे आएंगे अपन लोग, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 44 अपॉन 2. तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 48 अपॉन 2. 48 शुड बी रिटन एज 16 इंटू 3. 16 बार आएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2 4 2 3 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 3. अब ये वाला इसको चेक करने के लिए अगर अपन लोग प्लस लेंगे, माइनस 1 प्लस रूट 2 रूट 3 रूट 3 होता है 1.71. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन अपने पास आ जाएगा 3.42 माइनस 1 विच इज 2.42. तो ये वाला इसका रूट है, और साथ में माइनस 1 माइनस 2 रूट 3, ये तो इसका रूट हो जाएगा.
क्योंकि ये ऑलरेडी पूरा वो नेगेटिव है। तो हमारे पास 3 रूट्स हैं। सबसे पहला 1 -1 -2√3 -1 +2√3 और 3। हमें क्या निकालना है? हमें स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स निकालना है। तो -1 2√3 होल स्क्वायर प्लस -1 2√3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये इसका माइनस कॉमन लेंगे अपन लोग, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर की वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4√3 प्लस 2√3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4√3 प्लस 9। 4√3 कैंसिल 4√3, we would get 12 plus 12 plus 1 plus 1 plus 9, 24 plus 2 plus 9, 26 plus 9, which is equals to 35। हमारा आंसर 35 है। कहीं पे हम गलत कर रहे हैं, वही नहीं, हम देख लेते हैं। ये ये 2 हो जाएगा, तो हमारे पास ये रूट 1 और आ जाएगा यहाँ पे। x इज इक्वल्स टू 1 हमारा एक्सेप्टेबल रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को 1 स्क्वायर और ऐड करना है, तो ये 36 हो जाएगा। तो 36 अपना आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मॉड x माइनस 3 मॉड x प्लस 2। तो ये टाइप के क्वेश्चंस हम जनरली ग्राफ से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग मॉड x माइनस 3 और मॉड x प्लस 2 का ग्राफ बनाते हैं। x माइनस 3 के लिए सबसे पहले अपन लोग y बराबर 0 कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 पे ये 0 हो जाएगा, और जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमारे पास ग्राफ होगा हमारे पास ये ग्राफ होगा ऐसे। अब अगले ग्राफ के लिए x प्लस 2, तो x इक्वल्स टू -2 पे ग्राफ 0 हो जाएगा अपना। तो ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और y 0 पे x y भी 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो लाइन हो जाएगी ये समथिंग लाइक दिस। तो हमें इनमें से मिनिमम ग्राफ चाहिए फॉर x, फॉर अ वैल्यू ऑफ x। तो our graph should be something like this. We would take this full portion and this portion. So our graph should be like this. This is our graph for minimum mod x minus 3 comma mod x plus 2. For example, if you take minus 2x equals to minus 2, for x is equals to minus 2, we would get y is equals to minus 5 on the graph mod x minus 3. That's why we have taken this segment of the function, and for this side we have taken this segment of this function, because this is minimum for a value of x. Now to find the number of roots for this equation, we have to make a graph of x square plus 3x plus 2। तो इसका इसके रूट्स हो जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 1। तो इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। तो इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि ये दो जगह इंटरफेयर कर रहा है या कट कर रहा है ग्राफ को, इसलिए इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं। अगर x 0 रख दें अपन लोग, तो y इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है।
और अगर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे अपन लोग तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, अरे सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये अपना ग्राफ है जो दो जगह कट कर रहा है इस फंक्शन को, इसलिए अपना आंसर 2 हो जाना चाहिए। अब नाउ ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a b minus c plus b c minus a plus c a minus b is equals to 0। हमारे पास a plus c इक्वल टू 15 है और b इज इक्वल टू 36/5 है। हमें a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फाइंड करना हैज इक्वल्स रूट्स। तो इक्वल रूट होने के लिए b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर -4 सी ए माइनस बी इंटू ए बी माइनस सी। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac -4ac ए बी माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी सी। तो वी हैव बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर -2ac बी स्क्वायर -4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac बी स्क्वायर प्लस -4ab square. Now we would combine these two, we would get b square c square plus b square a square plus 2ac b square minus 4 square bc minus 4ab c square plus 4 square c square। तो ये इसको अपन लिख सकते हैं b a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4abc। तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अपन को b स्क्वायर की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है मोस्ट प्रोबेबली, तो 36 प्लस बाय 5 होल स्क्वायर एंड a प्लस सी इक्वल टू 15, so 15 स्क्वायर माइनस 4ab 4 into 36 by 5 ac into 15 plus 4a square c square equals to 0। So we would take common 4 from whole equation, so a square c square minus 36 into 3ac plus 9 into 36 by 5 into 225 5 square is equals to 0। So we would get, now let us assume that AC is equals to T, so T square minus 3 6 18 108T plus 81 into 36। Now if you see that this sum is equals to this, now this is equals to 81 into 36, so we have to find 81 into 36 is equals to 0, 9 into 9 into 9 into 4, so we have to find the such that 108 is equals to so 81 into 36 can be written as t square minus 54t minus 54t plus 81 into 36 or 54 whole square. So this equation is equal to t is equal to 54. So we would get that AC is equals to 54. Now we have to find a square plus c square. This can be written as a plus c ka whole square minus 2ac. So a plus c is equal to 15, 15 whole square minus 2 into 54, 225 minus 108, which is equals to 1117.
तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1170। इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने इसके रूट्स कैसे किए, तो 3 into 3 into 3 which is equal to 27 into 2, that would make one pair. Now again 3 into 3 into 3 into 2 make another pair. So here how इस यहाँ से मुझे पता पड़ा कि t इक्वल टू 54 रूट हो जाएंगे इसके. Now for our next question we have x square minus 9x plus 11 whole square minus x minus 4 into x minus 5 is equal to 3. इसको सॉल्व करने में हमारे पास आएगा 5 plus 4 is equal to 9x into 5 into 4 is equal to 20. So we have यहाँ पे अपन को कॉमन दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x दोनों में कॉमन है, तो इसको t मान लेंगे अपन लोग. तो t प्लस 11 होल स्क्वायर माइनस t प्लस 20 इज इक्वल टू 3. तो t स्क्वायर प्लस 121 प्लस 22t माइनस t माइनस 20 इज इक्वल टू 3. तो t स्क्वायर प्लस 21t minus 20, so minus 120 plus 120 minus 23 is equal to 0. So this should be written as 98 21t plus t square. Now 98 can be written as 49 into 2, 7 into 7 into 2. So 7 to 14 plus 7. So t plus 14 into t plus 7 is equal to 0. So x square minus 9x plus 14 into x square minus 9x plus 7 is equal to 0. Now this have let us check this discriminant. D is equals to 81 into 14 into 4, 56 81. So they both have real roots, so we have to find product of the rational roots of the equation. Rational roots. So the rational roots, we have to find the rational roots of this equation. So x square minus 9x plus 14, x square minus 9x plus 7. Now let us find the d for both these equations. 81 minus 56 d2 is equals to 81 minus 28. So 60 21 and root 25 and d2 is equals to 30 51 51 53. So this should make the roots rational. So we the sum of the rational root as the discriminant is a perfect square, so we should get roots rational. So sum the product of the roots should be 14. This is our answer. Now for the next question we have fx into f1 by x is equals to fx plus f 1 by x. Now it has been given that fx is a polynomial of degree 2. So we can assume that this can be written as this. Now let us put this value into this. So we would get ax square plus bx plus c, a by x square plus b by x plus c is equals to ax square plus bx plus c plus a by x square plus b by x plus c. So by multiplying these both two, we would get a square plus a bx plus ac x square plus bax. So by multiplying these both equation, we would get a square plus abx plus acx square plus ba by x plus
बी स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बी वाई एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस सी प्लस टू सी. So now combining this equation, AC x square or AC by x square. So we got AC x square plus 1 by x square, ABX, AB by x, BCX or BC by x. So AB plus BC into x plus 1 by x and plus A square plus B square plus C square is equal to this. So by comparing this equation, we would get AC is equals to A, AB plus BC is equals to B, and A square plus B square plus C square is equals to 2C. Now, from here you would get AC minus A is equals to 0 and AC minus 1 is equals to 0. So C is equals to 1. From here we would get AB plus B into 1 is equals to B. So AB is equals to 0. Now, as A can be equals to 0, as is it given that the polynomial is of degree 2. So if अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा. अगर ये 0 हो गया तो पॉलिनोमियल डिग्री 2 का नहीं बच पाएगा, तो इसलिए a 0 नहीं हो पाएगा. तो इसलिए b 0 है हमारा, c 1 है. इन दोनों को वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1. सो आवर पॉलिनोमियल शुड बी एफ एक्स 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर. अब हमें रेंज दी गई हुई है माइनस इन्फिनिटी से 1. तो ये अगर तभी पॉसिबल है जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर की रेंज है 0 टू इन्फिनिटी. तो अगर ये 0 टू इन्फिनिटी है तो एफ एक्स हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1. तो हमारा एफ एक्स हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब हमें गिवन है कि एफ के इक्वल्स टू माइनस 2k. तो एफ के इक्वल्स टू 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2k. सो के स्क्वायर माइनस 2k minus 1 is equal to 0. We have to find the sum of the squares of all possible values of k. तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर निकालना है अपन को, वेयर k1 इसके रूट्स, k1 और k2 इसके रूट्स हैं. तो इनको लिख सकते हैं अपन लोग k1 k2 होल स्क्वायर माइनस 2, k1 k2 इक्वल टू 0. तो k1 प्लस k2 इक्वल्स टू माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0. तो 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट 0. 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6. सो आवर आंसर इज 6. अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस लैम्डा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देन. तो इसके अल्फा बीटा रूट्स दिए गए हैं अपन को, और अपन को मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस एक्सप्रेशन की. तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास है 70 और अल्फा बीटा है लैम्डा. तो बीटा को अपन लिख देंगे 70 माइनस अल्फा. तो अल्फा इंटू 70 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा. तो अपन 1 बाई 1 चेक करेंगे कि लैम्डा है वो अपना नेचुरल नंबर आ जाए, वेयर अल्फा इज ऑल्सो नेचुरल नंबर. तो और ये दिया गया अपन को गिवन है कि लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 3 डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. इट मीन्स कि लैम्डा ना 2 से डिविजिबल होगा और ना 3 से डिविजिबल होगा. तो अपन लोग 1 बाई 1 वैल्यू पुट करके देखते हैं. 1 इंटू 69 ये 3 से डिविजिबल है. 2 इंटू 68 ये 2 से डिविजिबल है. 3 इंटू 67 ये 3 से डिविजिबल है. 4 इंटू 64 ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 5 इंटू 65. तो दिस इज द ओनली वैल्यू वी वुड गेट कि ये ना 2 से डिविजिबल हो ना 3 से डिविजिबल हो. तो लैम्डा हो जाएगा अपना 65 इंटू 5.
This is equals to 325. So the minimum possible value of root alpha minus 1 plus root beta minus 1 lambda plus 35 upon mod alpha minus beta. So we have root 4 plus root 64 into 325 plus 35 alpha minus beta. We have 60. So this 2 plus 8, 3, 5, 360 by 60. So 10 or 6 is 36. So we would get 60 as our answer. So thank you for watching today, guys. This is where we stop. So in our next video, we are going to be discussing kinematics. So keep practicing till then, and revise kinematics until then. Thank you.